Hello, hi friends, welcome to Techify tutorial. So today we are here to start a new playlist of Zomato, questions that was asked in the Zomato interview. I got the list of the questions from the LinkedIn, so I'm going to upload it there. So big thanks to them. Um, and there are more than 15 plus questions that is given. So I just saw the questions and I saw what kind of question it is. And I found that the question was very good. So I thought that let's solve those questions and upload the video. So in this playlist, we'll be uploading the problem one by one. Um, and also, and you could find the problem tables. I mean, all the tables that you could see here on the screen. There are so many tables. You could find all the tables on my GitHub. So uh, I will paste the link of the GitHub repository in the video description. So you could find that all questions from there only. Also, what I have done is since the questions was in form of PDF. So what I did is I used ChatGPT to convert those PDF table into a downloadable CSV format. So I've used the second brain as an AI. know, you might be aware of this statement made by the Zomato CEO, Dipinder Goyal. So let's come back to the problems. So here, if you could see on my screen, there is a table, and let's say, oops, screen. Okay. So there is a table, and based on this table, the first question that they have asked is write a SQL query to find the top five most ordered dishes from a given restaurant, right? And this given restaurant could be anything, right? For example, the restaurant ID is 101, right? Or 101. Now, for this restaurant ID, we have to find you know, we have to find the five most ordered dishes. Now, how the one can assure that this burger that was uh, ordered from this restaurant ID was the uh, most ordered dish. तो यहाँ पे अगर देखो तो यहाँ पे there is a column given called quantity, right? So based on this quantity column, we'll be figuring out which dishes are the most sellable dish, right? Most ordered dish for a particular restaurant. तो इसके लिए ठीक है, ये तो टेबल हो गया, राइट? अभी अपन को सिक्वल आई हैव यूज माई एसक्यूएल, राइट? यू कैन यूज any kind of sequential query language, say for example Postgre or Oracle or anything. But what you want is, right, you should have something called MySQL Workbench where you could write all the code, right? तो मैं दिखा देता हूँ क्या क्या चाहिए, राइट? एक तो एक जैम्प करके सॉफ्टवेयर आता है, राइट? तो जैम्प अगर नहीं है आपके डिवाइस में, आपके पीसी में, तो आप जैम्प डाउनलोड कर सकते हो। एंड यहाँ पे आप स्टार्ट करते हो ये अपाची एंड माई एसक्यूएल को। इसको फिर मिनिमाइज कर लो, एंड देन यू कैन ओपन दिस माई एसक्यूएल वर्कबेंच। अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लो, कैन डाउनलोड माई एसक्यूएल वर्कबेंच। तो अगर आप ओपन करते हो माई एसक्यूएल वर्कबेंच तो इस तरह का इंटरफेस आता है। अगर आपको नाउ हियर यू हैव टू एस्टैब्लिश द कनेक्शन। यहाँ पे आप क्या कर लो, प्लस करके अपना कनेक्शन का नाम अ, दे दो, लेट्स से एबीसी। मैं अभी नाम दे दिया, कुछ मीनिंगफुल नाम दे सकते हैं आप। ठीक है, एबीसी हो गया। नाउ इफ यू क्लिक, तो ये एक डायलॉग बॉक्स आएगा, आप कंटिन्यू एनी पे कर सकते हो और यहाँ पे आपको क्या होगा, कनेक्शन स्टैब्लिश हो गया। अभी आप जितने भी अपने माइस्क्यूएल वर्कबेंच पे जितने भी स्कीमा आपने डाउनलोड किया होगा, जितने भी आपके टेबल होगा, डेटा फ्रेम होगा, वो सारा डेटा फ्रेम इस स्कीमा के अंदर में दिखेगा। ठीक है, सो यू कैन यूज दिस, राइट? अगर आपको लेट्स से जोमेटो का यू नो डेटाबेस बनाना है, राइट? सो यू कैन राइट क्रिएट डेटाबेस
डेटाबेस और यू कैन गिव द नेम ऑफ डेटाबेस एज जोमेटो और यहाँ पे आप रन कर लो। ठीक है, ठीक है। कांट क्रिएट डेटाबेस जोमेटो, तो मे बी जोमेटो पहले से ही है, एंड राइट दिस, राइट, तो जोमेटो वन। सो अभी यहाँ पे अगर रिफ्रेश करोगे तो जोमेटो वन दिखेगा, राइट। सो क्योंकि जोमेटो पहले से था इसलिए वो क्रिएट नहीं हुआ, अभी जोमेटो वन क्रिएट हो गया। एंड देन व्हाट यू कैन डू इज, यहाँ पे अब क्या कर सकते हो, आप जोमेटो वन में जाओ। जोमेटो वन में जाएंगे तो देर समथिंग कॉल्ड टेबल्स। तो इस पर राइट क्लिक करके आप टेबल फ्रॉम विजार्ड से जो भी आपने डाउनलोड किया हुआ है, टेबल वन, टेबल टू, वट एवर, आप इसको यहाँ पे अपलोड कर सकते हो, राइट। तो यू कैन अपलोड हियर, राइट क्लिक हियर, यहाँ पे आप जा सकते हैं, राइट क्लिक करके आप टेबल फ्रॉम विजार्ड, और यहाँ पे जो भी आपको टेबल को अपलोड करना है उसको दे दो नेक्स्ट। यहाँ पे यू कैन राइट योर ओन नेम ऑफ योर टेबल, table one, users table, order table, whatever you want to give the name of your table, you can give here, over here. And then you can click on the next button, next, next, and next, and next, and finish. So what happens is, here अगर आप रिफ्रेश करोगे, राइट, so if you refresh this, here you could find that कि आपकी जो टेबल वन है वो क्या है, अपलोड हो गया है। So in this way you could make your own data frame, you could use your table, right? ठीक है। अभी मैं क्या है, मैं जोमेटो टेबल ऑलरेडी, जोमेटो डेटा फ्रेम ऑलरेडी क्रिएट कर रखा हूँ, तो आई विल जस्ट ड्रॉप दिस जोमेटो वन वाला जो अभी क्रिएट हुआ है, राइट। सो माई एसक्यूएल वर्कबेंच अभी मैं ओपन कर लेता हूँ जो मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है, जोमेटो प्रैक्टिस करके मैंने नाम दिया हुआ था। ठीक है, राइट। सो दिस इज दिस, राइट। द थिंग इज दैट आप क्रिएट करने के बाद आप ये कोड लिख सकते हो, यूज जोमेटो। अभी ये डेटा फ्रेम का नाम है आपका। अभी ये कोड का यूज क्या है, जब भी आप, और फिर आप क्या कर लो, इसको कमेंट आउट कर लो। तो जब भी आप क्या कर लो, जब भी आप कोई टेबल यहाँ से देख रहे हो, राइट, वी हैव थ्री टेबल्स, राइट, तो तीन टेबल्स यहाँ पे हमने अपलोड किया हुआ है। तो जब भी हम टेबल कोई भी यूज कर रहे होंगे ना, तो वहाँ पे वी हैव टू गिव द नेम ऑफ द डेटा फ्रेम, और डेटा फ्रेम के अंदर में जो टेबल आपको चाहिए वो देना होता है। फॉर एग्जाम्पल सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, लेट्स से ऑर्डर वन का डिटेल देखना चाहते हैं, so I can write this code. Now, if you don't use this code, use Zomato. So you have to write here Zomato dot order one. Okay? You have to write the data frame का name and then table का नाम। तो इस तरह से आप दे सकते हो, बट ये कन्वीनियंट के लिए आप इसको यूज़ नहीं करके क्या कर लो, यूज़ जोमेटो कर लो, उसको कमेंट आउट करो, और देन यू कैन यूज़ डायरेक्टली, यू कैन फेच योर टेबल नेम। ठीक है जी, ये तो हो गया सेटअप। अभी विल कम टू द फर्स्ट प्रॉब्लम। तो देखो, पहला जो टेबल है, राइट, उस टेबल में क्या हुआ है, आपको इस तरह से टेबल दिया हुआ है। इसमें यू हैव गिवन यूजर आईडी, डिश नेम, रेस्टोरेंट आईडी, क्वांटिटी एंड ऑर्डर डेट। बेसिकली क्या है, ऑर्डर आईडी क्या है, ऑर्डर जो डिश का नाम है वो क्या है, एंड कौन सा रेस्टोरेंट से ऑर्डर हुआ, कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुआ, और कौन से डेट पे ऑर्डर हुआ। ये सारी इन्फॉर्मेशन क्या है यहाँ पे दिया हुआ है। अभी अपन को क्या करना है, अभी क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ने ये पूछा है कि राइट अ equal query to find the top five most ordered dishes from a given restaurant, right? Let's say restaurant ID 101 है, so for 101 you have to find the top five most ordered dishes। मतलब 101 जो रेस्टोरेंट है उसका जो सबसे पांच, जो सबसे मोस्ट ऑर्डर्ड फूड है वो आपको अ, दिखना चाहिए, राइट। तो सबसे ज़्यादा वो पांच डिशेस कौन सा बेचता है, राइट, वो रेस्टोरेंट, दैट वी हैव टू फिगर आउट फ्रॉम दिस क्वेश्चन।
नाउ हियर दिस द टेबल। सो अभी करना क्या है, आपको चाहिए क्या, आपको चाहिए डिश का नेम, राइट, और रेस्टोरेंट आईडी 101 के लिए, और सबसे ज़्यादा सेलेबल और ऑर्डर फूड। अभी वो ऑर्डर फूड कैसे पता चलेगा, ये क्वांटिटी कॉलम से पता चल जाएगा। तो क्वांटिटी कॉलम दिया हुआ है कि कितनी क्वांटिटी ऑर्डर हुआ, तो सबसे ज़्यादा ऑर्डर होगा वो सबसे ज़्यादा ऑर्डर फूड है। तो क्या करेंगे अपन, वेरी सिंपल प्रॉब्लम, सेलेक्ट सेलेक्ट लेट्स से अपन को चाहिए डिश नेम, सो डिश और डिश, select dish name, and we'll apply a sum function on quantity as total orders um, from table name is order 1, so order 1, we'll apply a group by on dish name, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हमें जो जितने भी um, जितने भी डिशेज है, राइट, उस पे ऑर्डर बाय लगाएंगे, उस पे ग्रुप बाय लगाएंगे, सो दैट वी कुड फाइंड कि एक पर्टिकुलर डिश कितना टोटल क्वांटिटी है, राइट, एंड देन वी कैन गिव द, इन द वेयर क्लोज वी कैन गिव द रेस्टोरेंट आईडी, जिस भी रेस्टोरेंट आईडी का हम फाइंड करना चाहते हैं। पहले तो अपन क्या कर रहे हैं, इसको रन करते हैं, राइट। सो इफ यू रन दिस ना, यू विल गेट दिस टेबल एज कि डिश नेम बर्गर, टोटल क्वांटिटी क्या है, 7 है, पास्ता 3, पिज्जा इज 3। नाउ इफ यू वांट टू फाइंड फॉर अ पर्टिकुलर रेस्टोरेंट, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे दे सकते हो वेयर, वेयर रेस्टोरेंट आईडी, तो वेयर, यहाँ से कॉपी कर लेंगे टेबल का नेम, एंड वेयर रेस्टोरेंट आईडी इज इक्वल टू R101, ठीक है, रेस्टोरेंट आईडी। अभी अगर आप इसको रन करो, राइट, तो यू विल गेट कि रेस्टोरेंट आईडी 101 के लिए जो सबसे ज़्यादा सेलेबल फूड है, राइट, वो है बर्गर, जिसका 7 ऑर्डर है, पास्ता है 3। ये दो ही अभी तक इस टेबल के अकॉर्डिंग देयर आर ओनली 2 डिशेस, that is uh, that is for the restaurant 101. Now what problem is saying, problem is saying that you have to find the top 5 most ordered dishes, right? So what you will do, भी 101 के लिए जितने भी ऑर्डर है वो सारे दिख रहे हैं, बट हमें हमें तो क्या चाहिए, टॉप 5 चाहिए। सो ऑर्डर बाई लगा दो आप, ऑर्डर बाई ऑन टोटल ऑर्डर्स, अपने ऑलरेडी टोटल ऑर्डर्स करके कॉलम बना रखा है, तो ऑर्डर बाय लगा लो, एंड यू ओनली वांट टॉप 5, सो लिमिट 5, राइट। तो अभी क्या है, अभी ये दो ही है, इसलिए दो ही शो हो रहा है, राइट। अभी दो से ज़्यादा होता डिश, राइट, से फॉर एग्जांपल 10 होता, तो उसमें जो टॉप 5 होता वो आपको दिखता फॉर अ रेस्टोरेंट आईडी 101, राइट। तो आई गेस द प्रॉब्लम वाज सिंपल प्रॉब्लम। आपको क्या करना था, ग्रुप बाय लगाना था डिश नेम पे, क्यों, क्योंकि हमें चाहिए कि कौन सा डिश कितना सेल हुआ, पहले तो ये चाहिए कि भाई बर्गर है, तो बर्गर का टोटल क्वांटिटी कितना सेल हुआ। ना अभी क्या है, अभी वो पर्टिकुलर रेस्टोरेंट आईडी से हमें चाहिए कि भाई रेस्टोरेंट आईडी 101 का टोटल सेल कितना हुआ, बर्गर एंड पिज्जा एंड पास्ता वॉट एवर। तो हमने वेयर क्लॉज में वो दे दिया, अभी वो भी नहीं चाहिए, अभी हमें चाहिए कि सारे ऑर्डर नहीं चाहिए, वी वांट ओनली टॉप 5 मोस्ट ऑर्डर फूड फॉर द रेस्टोरेंट आईडी 101। So what we did is we then applied a order by on total orders, and then uh, we have arranged them in a descending order, and we are fetching only top 5 uh, orders, right? That's it about this problem, guys. We'll meet in the next problem. Thanks.